Okay. All right. Assalamu alaikum, students. We are starting our 19th lecture of Internet of Things today. Do you have any questions from our previous material or all the things which we have done up till now? No question? Okay. Uh, have you submitted your design part A and part B thing of your um, last project? There was time was 12 o'clock, which means this before this class you were supposed to submit part A and B of our this design project 6. Okay, and as we told you that after the class Hasib will upload the complete design thing, which means the circuit diagram showing where each thing is connected for this project. And then you can change in your code GPIO number according to this diagram. We had given you anyway these GPIO numbers and that detail earlier also. But now if you had made some mistake in your design thing, by looking at our solution, how things are connected, you can make corrections in your code and prepare it. And on the class day, you should be able to run it on the circuit patched according to this, the solution which we will upload after the class. Okay हसीब, आप अब सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हैं डिज़ाइन पार्ट का, जो हमारी लेआउट है और सेगमेंट की कनेक्टिविटी है और डिटेल जी सर। 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो विच वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सो यू कैन अपलोड दैट. ओके. जी जी। और ओके, ओके, अब वी कंटिन्यू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. आपकी आवाज़ सर कट कट के आ रही थी। मैं अच्छा, अभी देखें. मैं वैसे अपलोड कर दूंगा जी। अब ठीक है. जी अब ठीक है, अब ठीक है। ओके. अच्छा जी, last time for our class we started with the thing that how to subscribe to a web service. We discussed some important web service provider, and then we said that we will be using Yahoo weather web services. So it is that if there is a website and you want to subscribe to it, which means you want to extract data from the website. Somebody has set up the website, the data is there, and you want to get that data for the purpose of implementing your IoT systems. So it is at this stage we are learning if the website is there and you get the data from the website, use it in your IoT system like which you have been making, and maybe display that data or monitor that data or things like that. So at this stage we are learning that part. In fact, we introduced it last time to you. In the second phase, we will be
building a website, uh, not that there is already available website, but you also will build a website on which you will put your data, and then you will subscribe and use that data. So this is will be our dealing with this website thing. Okay, so as I told you last time, our one reference of using a website is a weather from Yahoo weather website. We will extract, get data from there and use to display the information extracted from there on our implemented systems integrated with Raspberry Pi. So Raspberry Pi will be doing both the thing, getting the data and also maybe displaying or monitoring or checking the ranges, etc., and taking actions on the physical devices which you have connected on your breadboard. So that is the thing we want to see at this part. As I told you, that this data, you can, okay. For this purpose, we had discussed last time that what to install and how to test that, and now we are using it. In terms of that, we want to use this information, so we create a class for that first of all, for getting this current data and maybe later displaying it. So here is that class about the current weather by the name of current weather. This class has this data, weather data. Here is that weather data. This weather data is a directory, as I told you last time also. These brackets show you the directory, and these columns thing also shows the directory. Any directory data type, as we learned in Raspberry in Python, has two parts. One is the key, another is value, right? So we have like that also in this data, small database or data information, a directory. On the, before the column, in the key part, it has the name of the city for which this weather data is placed here. That is the key. On the right side of the column, it has a list. There is one key and there is one value. Now the value can be of any type, of many types, which you can change also. And here in that heading, there, because you can have this also a composite type, so we have the value part as a list, right? So that makes us possible for us that we can put multiple datas in the value part, right? It is one list, it is one value part has one element, which is a list, but the list has multiple elements inside it. So that is how you combine a directory and list structure to put a data. It's that case. We discussed this combination when we were learning the directory and list, etc. Okay. So in this, on the left side, these are the keys listed. They are the names of the city. On the right side are a list which has three datas in it. One is the temperature, second is the weather condition, and third is the wind speed. 13 degree Celsius. In our program, there is a choice, and this data is Celsius, so we'll use this. This is Celsius data. So 13 degrees Celsius. Conditions will be given like this: partly sunny, mostly sunny, thunder showers, mostly cloudy, sunny, etc. These are the kind of weather conditions. And in the wind speed, there are the three parts. There is a value.
The value can be of 1 digit or 2 digit. Uh, Maximum can be of 2 digit or 1 digit. This is the unit, kilometers per hour for that speed. And this is the direction of the speed, northwest, west, northeast, southeast, etc. So this, it has three parts. Okay. So that is how this data of weather we have put in this class. Current weather data is this in this class. And as I told you last time, like all the classes, you have, the class has its own data and it has its own methods to process that data. That is the object oriented programming, that you make a class has in its own data and processes the data by the methods. So data and methods make a class, and we are using that structure. We can create any number of objects by this template of a class later and use it. Okay. So in the methods parts, we can see that we have uh, here this is init constructor part, that whenever you initiate an object instant from the class, what all should get initialized. In this case, there is a small initialization, that whichever city you mention, he will copy that city over here. That city attribute is copied here because it is it's a class, so it comes under the self dot city. The self thing appears in the methods also, and for the values which we'll use in the method. So this external city parameter which will be provided to this class, in it, whatever is the parameter in it, that means this is the parameter which will be provided by when you instantiate this class. Whenever you will instantiate current class as an object, this parameter which is given in this init thing is provided. Okay, so it will just copy that city into the self city, and then it has these methods. The methods get the temperature. To get the temperature, there is a method. To get the weather condition, and to get the wind speed. So these three parameters which are listed here against each city, you can get these parameters for each city by using these methods. So in the get temperature method, what you do is you use this weather data. This is the name of the database or directory. So in that weather data directory, you give the uh, key, which is the self dot city, that is city, first part. So you give that key. So you, when you give that key, you reach to that particular entry here, and in that, for the value part, you have many values. So you point to the value. By this key, you have reached to that city thing. And then in the value part, because there is a list, so you can point to a particular value in the list by giving the second index, right? This is index to reach to the key. And then when we have reached there, to select a value from the list, this is a second index, okay? So when we say 0, you point to this place, which means you get the temperature. So that is how it says return weather data self city 0. Okay, so here temperature will be returned for the city you have selected. This will point to the city and this will point to the temperature. Similarly, this weather data, self city, so it will point to the city in the directory, and then you will point to the weather condition index, and you will get this weather condition. Then you will say, okay, point to the city, and then you get the second data, which is the wind speed. So this is what we had even introduced last time. A class named as current weather
having a database as weather data and having these four methods to get the city and to get the temperature, to get the weather condition, and to get the wind speed. Okay. As we know, when we learned about the object-oriented programming in Python by using this class, we do is we instantiate a class into a real object that is a template, and here is a copy of that template, an instance of that template, and then you can make any number of templates and they will be independently handled in their own context. That is the benefit of object-oriented programming. So you make, in this case, you instantiated this class or made a object by using this current weather class. You provided it parameter of city as London. So in from that class database, it will go to this London. By using this parameter here, it will go to the entry London, and then it will get this data. It will instantiate this class as an object for this city. So you have made that selection because of the parameter. Okay, so this object will have the data of London current weather from that class. And now you can use this, you can get all these things for the city London. So you say now this object name, weather London, this you will use object name as we do always, weather London dot get temperature. Now that method which is given in the class is used here. So it gets the temperature and we say it will give you 12. If you print this or you output this, it will give you 12. We can see that. In the London weather, that is 12. Okay. And if you then say weather London dot get weather condition, you are calling the method weather condition. So it will give you mostly cloudy. Let's see that in this London is mostly cloudy. Okay, then you get the weather London dot get wind speed, and it will get 8 kilometer per hour in the northwest. You can see that 8 kilometer per hour north. So that is how this current weather thing is used as an object. If you want to now run and test the thing by using these from this object, if you want to carry out some action, you can do that for testing your code. Here is that, like you run your return functions, etc. into main program. You do that in C. In this case, this will be used if this double underscore name double underscore equal and this main with double underscore this thing. That means now you will run your program or use your objects in this main. Okay. There is one more thing we show here. Earlier we had just shown that city was taken as a attribute in the initial or constructor phase init. So we say, okay, we had not added a method for, if we want to read the city, we don't have a method. So we add this method also. Okay, get city method, in which that same self.city which we had there as attribute, we return that. So you can get, by calling this function, you add this function at the maybe end of that here. You had these three methods, you can add one more method, because here we had not put the method. This we had just initialized a attribute based on the parameter here. So if you want to at any time read what is the city,
like these methods. So you can add one more method, and we added the method get city. After having that, now if we run this in main, we run our code. So it says, first of all, that same current weather. In this case, it has taken Toronto for running in this example, giving it to the current weather object. And then it has just said, okay, print, and it has a sentence in terms of these. The current temperature is this, current weather is condition is this, current speed is this. So it is writing those things, and in between it is mentioning those variables where it wants to take the value. So it's just like any print statement, which combines your text printing along with the variables to be printed from the data, from your code. So here is say current temperature in, this is the quote unquote your statement, and then here is a comma, and then there is a variable which you want to print here. So current weather dot get city. So in, after in, it will print Toronto because this has that value. Then it prints there is in quotes current weather dot get temperature. So now it will get, this is a variable after comma, this is a variable. So it gets that temperature, which we saw, you can see there in the table, whatever temperature is there, it will print that. And then it is in quote unquote, it is printing the text degrees Celsius. In our thing, we had selected degrees Celsius, so we print that. Similarly, weather condition and weather, wind speed and all that. Right? So this is what will be the output. The current temperature in Toronto is 13 degrees Celsius. The weather condition are partly sunny and the wind is coming out of the northwest direction with a speed of 8 kilometers. So by running this program in this main, we have used the object of current weather, and we have printed the data from there. This moment we have just printed the data. In our next cases, we will use this and integrate it with our the hardware circuit which we have made in two contexts and can use it. Here is, it was just a print. There were these two examples we'll see. One example is for the Morse code generator, that if you want to use that weather thing to be integrated with your Morse code generator built in the hardware on your breadboard, you want to get the weather data from there and you can want to print it here in your hardware. So here is that I showed you this code. Now we are just putting things together to link them. I also told you that this code is about the Morse code thing, which in the past, earlier time, when they want to send some message, they will use, to distinguish between, let's say, 0 and 1, they will use dot and dash for the Morse code generators. They were used for a long time. So they will, if there is a dot, short time thing, it's like 0 maybe. And if it is a longer thing, dash, 3 times longer than that, then it is dash. And you distinguish, you format the messages based on this and send the messages. So again, after saying that this is your breadboard on which you have this circuit, this LED and this sleep, and then here is the class, Morse code generator, LED on 18, and you define the duration of dot is 0.3 seconds, the duration of dash is 3 times that, which means 0.9 seconds, and if you want to transmit the word space duration, so you will say dot duration 7 times of that, which means 21 seconds, 2.1 seconds, because it was 0.3, right?
So these three durations you need for sending any message. So we define them in terms of these constants. And then here is, as usual, the directory database, which is telling us what each alphabet corresponds to in terms of the code. So it says Morse code equal to, this is a directory. In the directory, in the keys part, we have A, B, C, D, E, F. These are the keys of the directory. After the key, you have this column. And in the remaining part, value part is the uh, pattern for the code. Dot dash, dash dot dot, dash dash dot, dot dash dash. As I told you, for our modern times, same thing, we translated, used it for our displaying this information or sending these messages, not as a dot dash. We can have a 0, 1 pattern used here for our any usage of databases which based on some code in terms of 0, 1. And we you can use in your this project of 7-segment display, making the 7-segment patterns for activation of each digit also like this. So that's a reference and a hint for you to solve your, write your code for this project 6, which you are doing. Okay. All right. So now you have this here. In this, you also have some additional methods. This was the just database for the Morse code, named as a Morse code. And then here is a method which is for transmitting of message. If a message is given and you want to transmit it, then you can use this method. And the method simply says this for loop, which is on this variable letter in message. Message is a string, उसके अंदर individual letters हैं. This is your variable. This is that message which you had from this parameter. This could be X or Y or Z. You use the word, more readable word letter. So for letter in the message. Sir, Yes. Yes. sir, आप हाँ. दोबारा हेलो जी. सर सर आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज़ कट रही थी अभी पहले, थोड़ी देर पहले. ओके. मैं कह रहा था कि इसमें हमारा एक मेथड है जो मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है. वो ये मेथड है ट्रांसमिट मैसेज. उसका हमने नाम रखा है और यहाँ पर पैरामीटर हम देते हैं मैसेज, विच इज़ ए स्ट्रिंग, जो आप मैसेज की शक्ल में आपको मिलेगा. इस मैसेज को आपने अगर ट्रांसमिट करना है एज ए डॉट डैश पैटर्न, तो ये मेथड हम यूज कर रहे हैं. इसमें ये फॉर लूप है जो 1 बाय 1 इस मैसेज के कैरेक्टर्स को या लेटर्स को देखेगा और उनको फिर सेंड करेगा. तो ये हम कह रहे हैं. तो इसके अंदर मोर्स कोड लेटर एक वेरिएबल में आप लाए. कौन सा? ये आपका मोर्स कोड का डेटाबेस है जो हमने पीछे देखी है. ये डिक्शनरी जो बनी हुई थी, ये जो डिक्शनरी बनाई है, ठीक है. तो इधर से जी. जो भी हमें लेटर, जो भी हमें मोर्स कोड से लेटर मिलेगा, हमने इस मोर्स कोड के डेटाबेस से, उस ये मैसेज में जो भी लेटर है, इस मैसेज में एनी लेटर के, यू कैन कॉल दिस फंक्शन ऑन एनी मैसेज. जी. अब उसने इस मैसेज को एनकोड करना है थ्रू द मोर्स कोड थिंग, जिसके लिए वो मोर्स कोड के डायरेक्टली एक डेटाबेस या रेफरेंस को इस्तेमाल कर रहा है.
उसके अंदर जी। जो भी कोई अल्फाबेट हो उसको उसने ट्रांसलेट करना है इन ए कोड, एनकोड करना है। जी। तो उसने मोर्स कोड की डेटाबेस को वो किया, एड्रेस ये डायरेक्टरी को, और उसके यहाँ ब्रैकेट में जो भी इधर से लेटर था एक, उसको डॉट, लेटर को अपर, हाँ उसको डॉट अपर अपर कर कर दे। दिया, हाँ जी। क्योंकि आपके पास वहाँ जो आपने ये मोर्स कोड की डायरेक्टरी बनाई है उसकी कीज ओनली अपर केस लेटर्स की हैं। तो हम मैसेजेस हाँ जी। इस केस में खाली अपर केस लेटर मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर किसी ने मैसेज में लोअर केस लिख दिया है तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस, असाइन इट टू तो ए, मैच नहीं करेगा। जी वो मैच नहीं करेगा, इसलिए आपने पहले कन्वर्ट किया हर लेटर को, उसको एक वेरिएबल में असाइन किया, और फिर आपने ये फॉर लूप चलाया कि वो जो भी कोई मोर्स कोड लेटर है उसके अंदर अब डैश डॉट जो है यानी 01 का जो पैटर्न है वो अब आपने भेजना है जी। बाय यूजिंग दिस एनकोडिंग जो मोर्स कोड के डायरेक्टरी में आपके पास है। तो यहाँ आपने मैसेज से एक लेटर को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ इस फॉर लूप में उस लेटर के अगेंस्ट उसके कोड को आप भेजोगे, कौन सा कोड। तो अब उसके आगे जो कोड है वो ये है कि ये डैश डॉट में इफ डैश डॉट इज ए डॉट, तो आप ये मेथड कॉल करोगे कि आप डॉट डॉट को भेजें, ये जी। फंक्शन कॉल करें। अगर वो डैश है तो फिर आप जी। ये फंक्शन कॉल करें। अगर वो जी। स्पेस है तो आप फिर ये फंक्शन कॉल करें, वर्ड स्पेसिंग। तो हर एक एक्टिविटी के लिए 3 वो हैं, और उसको भेजने के लिए आपका ये मैसेज को भेजने के प्रोग्राम है। जी। ये चीज़ ये वर्ड स्पेसिंग का ये आपने भेजा, और जी। ओके इस ये यहाँ पर थोड़ा सा बाह ये हमारा ये हो रहा है कि ये लेटर की स्पेसिंग है, ये वर्ड की स्पेसिंग है जब एक वर्ड पूरा हो जाए, और हाँ हर जी। लेटर में जो स्पेसिंग है वो आप ये स्पेसिंग दे रहे हैं। ठीक, जी। ओके। अब मैंने जो यहाँ पे जब ये मैसेज भेज रहा था तो फंक्शंस डॉट और डैश और ये भी कॉल किए थे, वो फंक्शन फिर मैंने यहाँ लिखे नीचे कि डॉट को आपने जब कॉल किया और भेजेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एलईडी जो आपका था डॉट ब्लिंक, आपने ब्लिंक फंक्शन कॉल कर ली, हाँ उस जी। डॉट की ड्यूरेशन आपने ऊपर डिफाइन की हुई है, ये वेरिएबल आपने इसमें हाँ जी। डाली हुई जी। है। तो आपने कहा एलईडी का ऑन टाइम कॉमा ऑफ टाइम कॉमा हाउ मैनी टाइम्स 1, वन टाइम। और ये वो जी। बैकग्राउंड के उसके लिए एक्टिवेशन। फॉल्स। तो ये आपने एक डॉट ड्यूरेशन के लिए एलईडी को ऑन और ऑफ किया, एक दफा ब्लिंक किया, ये काम। जी। फिर आपने डैश के लिए यही काम किया कि ऑन आपने डैश ड्यूरेशन के लिए किया ताकि ज्यादा देर की ड्यूरेशन से आपको पता चले कि अब डैश ट्रांसमिट हो रहा है। हाउएवर ऑफ जी। टाइम को आपने छोटा ही रखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप दिखाना ये ऑन टाइम से डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑफ टाइम आपने डॉट ही रखा और ये एक दफा जी। ये किया। इसी तरह लेटर स्पेसिंग का, जी। लेटर स्पेसिंग एक डॉट ड्यूरेशन ही की है। जब लेटर स्पेसिंग हो तो इसमें आप डॉट जी। ड्यूरेशन पर स्लीप हो जाए। के लिए स्लीप करेंगे। रुक जाए। और वर्ड स्पेसिंग के जी। लिए हमने ऊपर देखा था कि वर्ड स्पेसिंग की ड्यूरेशन 7 टाइम्स थी, तो आपने जी। वर्ड स्पेसिंग सेल्फ डॉट डॉट ड्यूरेशन को आपने वर्ड स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल किया। फिर तो इंटीग्रेट हो जाएगा। जी ये वाला नहीं समझ आया, ये जो वर्ड पेसिंग वाला है फंक्शन अच्छा, जिसमें आपने लिखा है स्लीप हाँ के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर कमेंट लिखा है, समझ नहीं आया। हाँ क्या आप बता देंगे? हाँ, अच्छा वर्ड स्पेसिंग ड्यूरेशन ये इसके साथ आगे मेथड है डॉट ड्यूरेशन का, और ये वर्ड जी। स्पेसिंग ड्यूरेशन सेल्फ, ठीक है।
ये हमारा ये यहाँ है। वर्ड स्पेसिंग के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और ये वर्ड स्पेसिंग ड्यूरेशन, ठीक है। जी तो हम इसको जब यहाँ पर ये हम कह रहे हैं ना वर्ड स्पेसिंग, ये मेथड यहाँ हमने कॉल किया है। जब हाँ हम जी एक वर्ड कंप्लीट हो गया है तो हमें एक स्पेसिंग देनी है जो हम इसके जरिए से दे रहे हैं। ये मेथड कॉल करके हमने जी स्लीप किया, ये वर्ड स्पेसिंग के लिए इतनी ड्यूरेशन के लिए, डॉट ड्यूरेशन के लिए हमने इसको स्लीप मोड में डाला और उस जी उतनी देर का एक गैप आ गया। तो ये लेटर स्पेसिंग, सर वर्ड स्पेसिंग दोनों हम डॉट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी ओके यस सर अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे जो हमने लिखा कोड, इसको अब हम रन करना चाहते हैं जी अपने इस सिस्टम पे। तो हमने ये कहा इफ नेम इज इक्वल टू मेन। पहले हमने मोर्स कोड जनरेटर जो बनाया है उसको यहाँ इंस्टेंशिएट किया इन दिस वेरिएबल, ठीक है। ये मोर्स जी कोड जनरेटर जी का हमारा जो क्लास थी क्लासेस है हाँ उसको जी हमने इंस्टेंशिएट किया। अब जब ये जी इंस्टेंशिएट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट का हमने ये मेथड कॉल किया डॉट ट्रांसमिट मैसेज, और हमने मैसेज जो अभी ऊपर लिखा था मैसेज, ये जो मैं कह रहा था यहाँ मैसेज, तो हमने वहाँ एक स्ट्रिंग डाला SOS, सेव अवर सोल वगैरह, जो आप अर्जेंसी में मैसेज भेजते हैं SOS। जी जी तो ये अब इस तरीके से उसको ट्रांसमिट कर देगा। ऑलराइट सही है ओके यस सर अच्छा, अब यही चीज वेदर में भी है अच्छा यही चीज अब हम ये मोर्स कोड जनरेटर, यहाँ हमने देखिए ये मोर्स कोड जनरेटर बनाया था। इस मोर्स कोड जनरेटर को अब वेदर से डेटा लेके और उसे भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां तो हमने बनाया था मोर्स कोड जनरेटर और उसको इंस्टेंशिएट किया, उसी के मेथड को यूज किया। हाँ ये जी हमारी बनी हुई आपकी अपना सिस्टम जो लोकल सिस्टम बना था मोर्स कोड जनरेटर, ये उसकी आपने जी यूज और टेस्टिंग की थी। अब आप चाहते हैं इस जी मोर्स कोड जनरेटर को इंटीग्रेट कर दें वेदर वाली चीज से जो हमने पीछे सीखी है, कि वेदर से जी अगर डाटा लें तो इस मोर्स कोड जनरेटर पे वेदर के डाटा को हम लें, वेदर का डाटा हम वेब से लें, और यहाँ आपके पास जो ये लोकल मोर्स कोड जनरेटर मौजूद है आपने हार्डवेयर में जो बनाया है, इस पर वेब का वेदर डाटा शो करें। अब हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने जो वेब की चीज सीखी थी पीछे, उसको इस मोर्स कोड जनरेटर से इंटीग्रेट कर लेंगे। आप अपना अब मोर्स कोड जनरेटर जो आपने बनाया है इसको आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक। फ्रॉम मोर्स कोड जनरेटर इंपोर्ट मोर्स कोड, जो आपका मोर्स कोड जनरेटर है वो आपने इंपोर्ट किया। अब इस दफा अपनी चीज को एज ए आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं जो बनाई थी आपने, और फिर उसको इंटीग्रेट जी कर रहे हैं ये वाली चीज से जो हम आपने करंट वेदर के लिए जो क्लास थी जिसमें हम ये सीखा, अब ये सारा हम सीख चुके। करंट वेदर क्लास का ये डाटा है, ठीक है। तो अब इसको मिला जी के इस्तेमाल करना है। आपने अपना मोर्स कोड जनरेटर पर डाला और ये आपकी वेदर की वो है। तो अब आप देखें, अब अगर आप रन करें नेम इक्वल टू मेन और उसमें ये पहले ये करें कि डाटा वहां से लें करंट वेदर टोरंटो, और यहाँ ये वेदर आ गया इस आपके इंस्टेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में। अब आपने मोर्स कोड जनरेटर को इंस्टेंशिएट किया इस ऑब्जेक्ट में, तो अब आपने दोनों को, वेदर को भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मोर्स कोड जनरेटर का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने क्या इस्तेमाल किया कि मोर्स कोड जनरेटर डॉट ट्रांसमिट मैसेज, मोर्स कोड जनरेटर के ट्रांसमिट मैसेज की ओके ऑलराइट ओके अच्छा जी। तो हमने क्या किया, अपने मोर्स कोड जनरेटर को इंपोर्ट किया और इस जो करंट वेदर का जो ये क्लास था इसके साथ हमने इंटीग्रेट किया है
यहाँ पर हमने मेन में पहले इंस्टेंशिएट किया और ऑब्जेक्ट बनाई करंट वेदर की, फिर हमने मोर्स कोड जनरेटर की, और फिर हमने पहले की तरह मोर्स कोड जनरेटर से ट्रांसमिट मैसेज का मेथड कॉल किया। प्रीवियस स्लाइड में हमने अपना लोकल मैसेज एसओएस लिख के भेजा था, अब हम कह रहे हैं कि वो हम वेब से लेंगे बाय यूजिंग दिस करंट वेदर थिंग। तो हम कह रहे हैं करंट वेदर डॉट गेट वेदर कंडीशंस। हमने वेब से ये वेदर कंडीशन एक्वायर की, उसका जो स्ट्रिंग है वेदर कंडीशन का, जैसे था ना जी। मोस्टली क्लाउडी, पार्शली क्लाउडी, वो जी। मैसेज अब इसके अंदर आ गया। इस मैसेज को हम ट्रांसमिट करेंगे यूजिंग द मोर्स कोड पैटर्न। ओके ओके सर। ऑलराइट, तो अब हमने इंटीग्रेशन विद वेब और आपका जो हार्डवेयर है उसका यूटिलाइज कर लिया। यही एग्जाम्पल हम अपना जो हमने पिछली दफा सर्वो मोटर का कोड लिखा था, हमारे पास अगेन ग्राउंड पे सर्वो मोटर मौजूद है, एंड वी वांट टू यूज दैट टू move a dial, a needle, which will point to, based on the weather information, it would point that what, let's say, what dress you should wear depending on the weather. Amuman, people are very particular in the other countries they, where weathers are more unpredictable. So they will always in the morning check the weather and select their dressing and umbrella and those things accordingly. So it is something like that you are building a system जो आपको ये चॉइस दे, ऑटोमेटेड वेदर एक्वायर करे वेब से करंट, और आपको बताया कि जी आप आज ये चीज़ें साथ लेके जाएं वेदर के मुताबिक। तो उसके हम ये बना रहे हैं। तो हमने ये सर्वो मोटर के बारे में पिछली क्लास में सीखा था कि आपको बड़ी प्रिसाइज फीडबैक में के तरीके से आपको नीडल्स को मूव कर सकती है इन प्रिसाइजली इन द पोजीशंस। हमने कहा था ये 180 डिग्री के डोमेन की भी होती हैं और 360 डिग्री की डोमेन की भी होती हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में 180 डिग्री की रेंज की इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है हमारा जो डिस्प्ले पार्ट है वो हाफ सर्कल है, और ये 0 से 180 डिग्री के दरमियान डिविजन्स हैं जिनमें डाटा दिए हुए हैं, और ये नीडल उधर पॉइंट करेगी। ये हमारा स्कोप है। और इसके बारे में आपको बताया था कि इसका ये एक एनालॉग चीज़ है, इसको आपको एनालॉग वोल्टेज की जैसे चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है मोटर्स को, अगर आपने उसको कम मूव करना है या ज़्यादा मूव करना है। तो इसके लिए देयर इज़ ए क्लेवर टेक्निक, वन टेक्निक टू गिव टू एनालॉग लेवल्स टू थिंग्स इज कि आप एक डिजिटल आउटपुट निकालें और उसको आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से कन्वर्ट करें और वो फीड करें वेरिंग वोल्टेज टू थिंग्स। अगर आपने उसको एनालॉग वे से मूव करना है, जैसे इसकी नीडल को आप कहें कि मैं जब 2 वोल्ट्स दूं तो तुम मे बी 30 डिग्री मूव हो जाओ, और जब मैं 4 वोल्ट्स दूं तो तुम 60 डिग्री मूव हो जाओ, और जब मैं 6 वोल्ट दूं तो तुम 90 डिग्री। इस तरह भी होता है चीज़ों को जो एनालॉग वोल्टेजेस पे काम करती हैं। मगर ये सर्वो मोटर में एक अच्छा क्लेवर वे हम यूज़ कर रहे हैं। वो ये कहता है कि आप डिजिटली ही पल्सेस जनरेट करें, और पल्सेस की ड्यूटी साइकिल के बेस पे इसको वेरियस वोल्टेज मिलेगी मोटर को, और आपकी नीडल लाइक एनालॉग इनपुट डिफरेंट डिग्रीज पे टर्न हो सकती है, विच इज़ अ वेरी क्लेवर मेथड, विच मीन्स कि आप एक सिंगल बिट डिजिटल डाटा की लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीपीआईओ पर, और वहां पर पल्सेस दे रहे हैं जिनकी ड्यूरेशन के बेस पे मोटर प्रिसाइजली टू ए सर्टेन डिग्री आप टर्न कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवर ऑप्शन। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो हमने इस केस में ये कही थी कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, मगर हमने कहा कि अच्छा जी अगर इसकी विड्थ 1 मिली सेकेंड है तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाली सिचुएशन में है,
और अगर 2 मिलीसेकंड है तो एक्सट्रीम राइट वाली में है, और इन बिटवीन वाले में दरमियान की पोजीशन में। तो समथिंग लाइक दिस कि आप पल्सेस PWM आउटपुट प्रोवाइड करेंगे इस मोटर को सिंगल लाइन पे और इसको टर्न कर लेंगे। ये हमने सर्वो मोटर के बारे में सीखा था। इसको अब हम इस वेदर डाटा से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो टू रिकॉल हियर इज दैट डिटेल जो आपके ब्रेड बोर्ड पे सर्वो मोटर कनेक्टेड है, जिसकी हमने तमाम तफसील लास्ट टाइम डिटेल से देखी कि हम कह रहे थे ये उसके सर्किट था कि एक एलईडी लगा हुआ है और एक सर्वो मोटर कनेक्टेड है। हमारी यहाँ से PWM पल्सेस जाएंगी इसको, उसके मुताबिक ये टर्न करेगी। और अगर कोई चीज़ें इन फॉर सर्टन रीजंस एलईडी के हमने यहाँ 3 ऑप्शंस दिए थे कि या एलईडी ऑफ होगा या एलईडी ऑन होगा और या एलईडी ब्लिंक करेगा। अगर एलईडी की स्टेटस में हम 0 देंगे तो ऑफ, स्टेटस में 1 देंगे तो ऑन, और स्टेटस में मोर देन 1 देंगे, लेट्स से 2 देंगे तो ब्लिंक करे। तो ये डिफरेंट एलईडी से अलार्म लेवल्स को शो करने की प्रोविजन हमने यहाँ रखी हुई है। अब उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं हम आगे देख लेंगे कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इधर हमने खाली ये बताया था कि आपके ये 2 चीज़ें हैं, एक सर्वो और एक एलईडी, उनके पिन दिए। इनिशियलाइजेशन में इनिट में हमने 2 पैरामीटर दिए, यानी अब जब इस क्लास को आप इंस्टेंशिएट करेंगे तो आप ये 2 पैरामीटर जो इनिट में पैरामीटर होते हैं, दे आर पैरामीटर लाइक हेयर एट द क्लास। जब आप क्लास इनिशियलाइज करेंगे तो ये 2 पैरामीटर जो इनिट में दिए होते हैं आपको प्रोवाइड करने होते हैं। इस केस में 2 पैरामीटर, एक है सर्वो की पोजीशन और एक है एलईडी का स्टेटस। ये आप प्रोवाइड करेंगे जब भी कभी इस वेदर डैशबोर्ड को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन्होंने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी हुई है कि अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो सर्वो की पोजीशन 0 ये लेगा और एलईडी की वैल्यू 0 लेगा। एलईडी की वैल्यू 0 को मतलब ऑफ कर देगा और सर्वो को मिनिमम इनिशियल पोजीशन पे मूव कर देगा। इसमें इनिट में वो सारे काम जो आप ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज करते हैं वो एक्टिविटीज़ आप डालते हैं। इस केस में जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि पहले तो आपने ये सर्वो का पिन नंबर बताया कि आप, और उसको ये नाम दिया सर्वो स्मॉल s के साथ, और आपने ये सर्वो का जैसे है एलईडी है, सर्वो है, हम उसके पिन नंबर से कोई एक वेरिएबल नेम चूज कर लेते हैं। तो हमने ये स्मॉल सर्वो स्मॉल एलईडी इन पिन नंबर्स के बेस पे चूज किए और फिर हमने इसमें मूव सर्वो का मेथड यूज किया जिसमें सर्वो पोजीशन या डिफ़ॉल्ट पोजीशन या जो बाहर के पैरामीटर से पोजीशन आई है उस पोजीशन पे सर्वो को इनिशियलाइज किया। यानी जब हम एक तरह से स्विच ऑन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपकी अगर डिफ़ॉल्ट मोड है तो 0 पे चला जाएगा सर्वो, नहीं तो जो भी इनिशियली आपने पोजीशन दी हुई है उस पे चला जाएगा। तो ये इनिशियलाइजेशन के वक्त पोजीशन की सेटिंग के बारे में। फिर इसी तरह एलईडी स्टेटस, आपने जो यहाँ पैरामीटर में एलईडी स्टेटस दिया होगा, जब आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तो वो स्टेटस एलईडी का हो जाएगा, या ऑफ या ऑन या ब्लिंकिंग, जो भी आपका डिजायर है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑब्जेक्ट। इनिट में खाली वो चीजें होती हैं। अब ये सारे मेथड जो इस केस में आपके हैं वो यहाँ मौजूद है, जो इसने यूज भी कर लिए हैं अपने इनिट में। एक तो है मूव सर्वो, एक है सेट एलईडी स्टेटस, और ये एक और मेथड है जो ऊपर इस जगह इस्तेमाल हुआ था, उसकी डिटेल यहाँ है। और ये मेथड क्या था कि जब आप मूव सर्वो कह रहे हैं तो उसको एक वैल्यू दे रहे हैं सर्वो की पोजीशन की। ये वैल्यू आप परसेंटेज की शक्ल में दे रहे हैं कि जो सर्वो का टोटल मूव करने का स्कोप है
इस केस में यहाँ से ये मिनिमम से मैक्सिमम इधर जाती है, तो ये टोटल स्कोप परसेंटेज में दे रहे हैं। यहाँ 0% सर्वो मूव हुआ है इस एंड पे, और जब 100% सर्वो मूव हो जाएगा तो इधर चला जाएगा। ये मिन और मैक्स के दरमियान परसेंटेज वाइज आप सर्वो की पोजीशन देते हैं। अच्छा, जो सर्वो है जैसे हमने देखा था कि वो एक्सेप्ट करती है वोल्टेजेस फ्रॉम -1 टू +1। वो भी हमने यहाँ दिया कि जब मिनिमम पे हो, लेफ्ट मोस्ट पे जाने के लिए आपको -1 वोल्ट चाहिए सर्वो को, और राइट मोस्ट के लिए +1 चाहिए। तो सर्वो को वोल्टेज -1 से +1 तक चाहिए, बट एज ए यूजर आप कहोगे सर्वो 0% मूव करे या 100% मूव करे या 50% मूव करे। तो ये जो कन्वर्शन है कि आपने परसेंटेज में कहा एज ए यूजर डाटा, और एक प्रोग्राम ने उसको सर्वो की वोल्टेजेस के मुताबिक कन्वर्ट किया, वो ये है कि आप ये कहते हैं मूव सर्वो में आपने सर्वो की पोजीशन दी, और फिर इसके अंदर वो क्या कहेगा कि सर्वो की जो वैल्यू है जो उस पर अप्लाई हो, सर्वो वैल्यू वो क्या हो कि जो आपने यहाँ पर सर्वो पोजीशन दी है, आप एक मेथड कॉल करें कन्वर्ट परसेंटेज टू इंटीजर, और इसमें ये सर्वो पोजीशन परसेंटेज वाली डाल रहे हैं, और ये वाला मेथड उसको सर्वो की वैल्यू के रेंज में कन्वर्ट कर देगा। जो ये मेथड यहाँ कॉल किया है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, कन्वर्ट परसेंट टू इंटीजर। यहाँ परसेंटेज में आपने सर्वो का अमाउंट दिया, और उसने, मैंने ये डिटेल आपको बताई थी कि उस परसेंटेज अमाउंट को 0.02 से मल्टीप्लाई करके -1 करेगा तो सही सर्वो वैल्यू एज पर दिस डायग्राम बन जाएगी। ये हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस कर लिया था। ओके, और इसी तरह अभी दूसरा मेथड है कि एलईडी, यहाँ जो भी एलईडी स्टेटस डिफॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन जो भी आप स्टेटस देंगे जब ये मेथड कॉल होगा, उसको देखते हुए कि अगर वो देखेगा ये स्टेटस 0 है तो एलईडी को ऑफ कर देगा, अगर स्टेटस 1 है तो एलईडी को ऑन कर देगा, और अगर अदर देन दैट है तो एलईडी को ब्लिंक कर देगा। ये हमारा आपके पैच बोर्ड पे सर्वो की जो एक्टिविटी का क्लास है वो ये है। इसको पहले हम ग्राउंड पर ही आपके ब्रेड बोर्ड पर ही सर्वो की टेस्टिंग कर रहे थे, और अभी हम वेदर पर नहीं गए, उसको इंटीग्रेट करेंगे अभी हम वेब पे। पहले हमने टेस्ट किया कि अगर मैं खाली लोकली अपने ब्रेड बोर्ड को चेक करूं, तो मैंने कहा मैं वेदर डैशबोर्ड, ये जो है क्लास, इसको इन 2 पैरामीटर्स में, जिसमें पहला पैरामीटर ये है सर्वो पोजीशन, मैंने कहा 50% पे मूव कर जाए। दूसरा मेथड है एलईडी स्टेटस, मैंने कहा एलईडी ऑन हो जाए। ये पैरामीटर्स के साथ इस क्लास को मैंने इंस्टेंशिएट किया टू दिस ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इंस्टेंशिएट करूंगा तो इनिट की वजह से ये नीडल इधर 50% का है, ये वर्टिकल, यहाँ 0 है, यहाँ 100% है, तो 50% में इट शुड गो टू द टॉप, और एक्चुअली ये कन्वर्ट होके वोल्टेज वाइज ये 0 होगी, -1 0 +1, तो 50 की वजह से नीडल इधर चली जाएगी टॉप पे। ओके, और एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जब मैं ये मेन रन करूंगा तो दैट इज व्हाट विल हैपन। ये हमारा ब्रेडबोर्ड पर जिसका यहाँ सर्किट बना हुआ है जो आप यूज कर रहे हो, और ये हमारी कनेक्टिविटी की डिजाइन सर्किट लेआउट, ये है ब्रेडबोर्ड पे पैचिंग, और ये हमारी सर्किट डायग्राम ऑफ डिजाइन है विच इज वेरी सिंपल। आपका सर्वो के आपने पावर सप्लाई कनेक्ट की, ये मे बी 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड, ये उसको एक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज होती है, और इसको आपने सिग्नल उसमें ये यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड की, ये वो पल्स विथ मॉड्यूलेशंस जो आप जनरेट करेंगे 1 मिलीसेकेंड, 1.5 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, उसके हिसाब से ये सर्वो टर्न कर जाएगी दिस। ये वो सिग्नल की लाइन है। तो 3 लाइनें हैं सर्वो की। एलईडी एज यूजुअल आपका एक लिमिटिंग रेजिस्टर एलईडी, और यहाँ जब ऑन करना है तो इस पॉइंट से हम कह रहे हैं कि आउटपुट मिलेगी, ऑन हो जाएगा, ये ग्राउंड है। ओके, ये हमारे ब्रेड बोर्ड पे सर्वो की वर्किंग की अरेंजमेंट है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सेम ओवर वेदर वाला जो वेबसाइट है, हम वहाँ से एक डाटा रीड करेंगे
और उसके मुताबिक इस सर्वो को मूव करेंगे और उसको ये पॉइंट करेगी कि विच ड्रेस यू शुड कैरी और पुट ऑन इन द मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अच्छा, तो अब इसके लिए ये वो जो वेदर डाटा की क्लास हम बना रहे हैं यहाँ पर, सर्वो के स्टेटस को वाया वेब हमने लेना है, वो ये है। तो आपने पहले फ्रॉम वेदर इंपोर्ट वेदर एंड ये वो यूनिट जो शुरू में हमने देखा था क्या विच यूनिट विल बी यूज्ड, वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसकी, और ये वेदर को कर रहे हैं। अब हम ये क्लास बना रहे हैं, क्लास वेदर डाटा। ये उस पीछे हमने नाम करंट वेदर रखा था, ये हमारी क्लास है तो इसका यहाँ हमने वेदर डाटा नाम रख दिया इस केस के लिए। तो ये नाम है, इसमें थोड़े बहुत हमने अपने सर्वो के मुताबिक थोड़े डाटा और मेथड्स में चेंजेस भी हैं, आप देखेंगे इसमें। इनिशियली डाटा का जब इसमें एट्रीब्यूट्स हमारे जो इनिशियल हैं उसमें हमने यहाँ टेम्परेचर को 0, वेदर कंडीशन के स्ट्रिंग को एम्प्टी, विंड स्पीड को 0 और सिटी के स्ट्रिंग को एम्प्टी, ये डाला एट्रीब्यूट्स। फिर हमने इसमें ये डिफाइन किया इनिट को, इनिट में ये पैरामीटर सिटी लेगा और पहले वही वेदर का यूनिट उसने डिफाइन किया और फिर वेदर डॉट लुकअप बाय लोकेशन को मेथड को कॉल किया और उसमें सिटी दिया। तो ये इसको लुकअप डॉट से लुकअप में आपका ये डाटा आ गया फॉर दैट सिटी बाय कॉलिंग दिस मेथड। ठीक, तो अब आपका लुकअप में डाटा मौजूद है। अब यहाँ से आप सारे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लुकअप डॉट कंडीशन डॉट टेम्प से टेम्परेचर का आ जाएगा, लुकअप डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट से वेदर कंडीशन आ जाएगी, लुकअप डॉट विंड्स डॉट स्पीड से विंड स्पीड आ जाएगी। तो ये हमने तीनों चीज़ें यहाँ एक्वायर कर ली इन इनिट। ये हमारे इसके मेथड्स हैं। एक मेथड है गेट सर्वो वैल्यू और एक मेथड है गेट एलईडी वैल्यू। अच्छा, अब इस केस में चलें पहले एलईडी वैल्यू को देख लेते हैं। इस केस में वेदर कंडीशन अगर इक्वल टू है, जब वो वेदर एक्वायर करेगा, अगर वेदर कंडीशन में स्ट्रिंग आता है थंडर स्टॉर्म, जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा अगर वेदर कंडीशन इक्वल टू थंडर स्टॉर्म है, तो हम इस केस में चाहते हैं कि एलईडी शुड स्टार्ट ब्लिंकिंग। आपके बोर्ड पर आपने जो एक बनाया हुआ है इसका डैशबोर्ड, वहाँ पर एलईडी भी लगा हुआ है और ये मोटर भी कनेक्ट लगी हुई है। तो आपका एलईडी शुड स्टार्ट ब्लिंकिंग। तो यहाँ पे वो जो एलईडी के चॉइसेस थे यूटिलाइज हो रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म अगर आया तो आप एलईडी की वैल्यू 2 सेट कर दें, वो ब्लिंक करने लगेगा। अगर रेनिंग का वहाँ से आया वेदर का एक्सट्रैक्ट हुआ कंडीशन, तो 1 कर दिया, इसका मतलब है खाली वो ऑन होगा, ब्लिंक नहीं करेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वो ऑफ रहेगा। यानी ये हमारा एक अस्यूम सिनेरियो है। आपके एलईडी का यूज़ कैन बी टू मैनी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन के। इधर हमारा जो सर्वो वैल्यू वाला पार्ट है, इसमें हमने यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। वो सिर्फ ये है कि आप जैसे स्केलिंग करते हैं, आपका मीटर होता है, फुल रीडिंग एक होती है और एक मिनिमम होती है। आपकी वोल्टेज वाइज टर्निंग मुख्तलिफ होती है, तो आप उसको स्केलिंग फैक्टर कर देते हैं कि जो भी कोई वैल्यू है वो हाफ हो जाए। जो सारी वैल्यूज़, हर वैल्यू हाफ यूज़ हो या हर वैल्यू 1/3 पे चली जाए। तो ये स्केलिंग भी हमने इसमें डाली है कि टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें फैक्टर ऑफ स्केलिंग है 100/30, अबाउट 1/3, 3 टाइम्स, 1/3 नहीं 3 टाइम्स वैल्यू को स्केल अप किया है यहाँ हमने। टेम्परेचर की वैल्यू को 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 0.33, 3.33। विंड स्पीड की वैल्यूज़ को 5 टाइम्स स्केल अप किया है। इसलिए फिर जब सर्वो वैल्यू बनाएगा, सर्वो तो एक
चीज़ों के इम्पैक्ट को कंबाइन करके एक सर्वो का डायल पे मूवमेंट हो रही, ठीक। तो हम ये इम्पैक्ट लेके टेम्परेचर और विंड स्पीड के उन्हें कंबाइन करके यहाँ आपने उनका जो भी वेटेज डालना है, यहाँ टेम्परेचर फैक्टर एज इट इज ले लिया, और विंड फैक्टर जो उधर से आ रहा है ऊपर, उसको 1/5 कर दिया, उसको 1/20th कर दिया, स्मॉल किया, 5% ऑफ दैट उसका फैक्टर लिया, इन्हें कंबाइन करके एक सर्वो वैल्यू बनाई जिस पे उसने टर्न होनी है। ये वैल्यू है जो आप -1 से +1 के दरमियान इसमें मूव करना है। तो ये हमने इसमें अपनी जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नीड के मुताबिक ये ऐसी करेक्शन हम अप्लाई करते हैं। अब ये इसका यूजेज है कि आपने नेम इफ इट इज मेन, तो आपने कहा पहले तो वेदर डाटा के उससे जो आपका है वहाँ पेरिस के डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये वेदर ऑब्जेक्ट वेदर डाटा से फॉर द सिटी पेरिस डाटा को लेकर इंस्टेंशिएट हुई है, और जब वो उसमें वैल्यूज आ गई तो अब आपने गेट सर्वो वैल्यू जो यहाँ अभी बनाई थी, गेट सर्वो वैल्यू जिसमें ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर इस्तेमाल हो रही थी, तो आपने उसमें यहाँ से वो गेट सर्वो वैल्यू ली, उसमें वो चीज़ें स्केल अप की, कंबाइन की, और इस केस में अभी हम यहाँ पर खाली वो प्रिंट कर रहे, प्रिंट कर दिया सर्वो वैल्यू, प्रिंट कर दी एलईडी वैल्यू। इन दिस वी हैव ओनली गॉन टू दैट स्टेज, यू जस्ट प्रिंट इट। अभी हमने वो जो नीडल को मूव करके वो करना था, उसको आगे हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। पहले हमने खाली यहाँ पे आपके ब्रेड बोर्ड पे जो लोकल सर्किट था उसकी वर्किंग टेस्ट की कि ये काम कर रहा है। फिर आपने अभी आपने इसको इंटीग्रेट नहीं किया था वेब से, आपने ये वैल्यूज खुद दी हैं, ठीक है। फिर आपने इसको यहाँ पर आपने खाली वेदर को से जो आपका पार्ट था उस वैल्यू को लिया वहाँ से और प्रिंट किया, इन दोनों को अलग अलग चेक किया आपने। अब आप कहोगे कि मैं अपने सर्वो को इस वेदर वाले वेब से इंटीग्रेट करके डाटा मैं वेब से लूँ और इस सर्वो को उसके मुताबिक मूव करूँ और एलईडी को उसके मुताबिक डिस्प्ले करूँ। अच्छा, अब ये काम करने के लिए एक आध चीज़ें और ये दे आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स के जब आप प्रैक्टिकली सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अभी हमने फैक्टर स्केल फैक्टर डाला, तो आप वो डालते हैं, ये फाइनल टचेस होते हैं जो बड़े ज़रूरी भी होते हैं। तो हमने एक स्केल फैक्टर से स्केल के मामले को देखा, फिर हमने ये देखा कि ये एक और चीज़ यहाँ एक और रिफाइनमेंट है, इट्स ए स्मॉल रिफाइनमेंट। वो ये था कि जो हमने यही मैंने बताया था, एक केस में 2 मिली सेकेंड आप वो दे रहे हैं उसको मैक्सिमम पल्स विड्थ, फॉर मैक्सिमम टर्निंग के लिए हम 2 मिली सेकेंड आपने दिया हुआ है, और मिनिमम टर्निंग के लिए जो हमारी पल्स विड्थ की जनरेट होती है हमने 1 दिया हुआ है, और हमने उस पर उसको सोचा कि वो मिनिमम से मैक्सिमम पर टर्न करेगी। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली उसको टेस्ट किया तो आपने देखा कि हाँ वो मिनिमम की तरफ जाती है, मगर बिल्कुल पूरी नहीं जाती, तो देयर इज स्मॉल एरर। इसी तरह वही एरर आपको मैक्सिमम नज़र आ रही है कि आप टोटल फुल ईस्ट की तरफ जाने से थोड़ा सा पीछे रह गई। तो आपने कहा ओके, आई कैन मेक स्मॉल करेक्शंस ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आपने ये ऐड एक स्मॉल वैल्यू जो 0.5 आपने रखी, तो 2 से 2.5 कर दिया कि जब राइट साइड पे जाए तो पूरी तरह टर्न हो जाए, और इधर से 1 से -0.5 किया तो 0.5 हो गया, यानी इधर की साइड को और थोड़ा सा कम किया, उधर की साइड को और थोड़ा सा बढ़ाया। इस तरह की करेक्शंस और एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करते वक्त आपको अक्सर करनी होती है। तो इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसी चीज़ें करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और ये डिवाइड बाय 1000, ये आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं मिली सेकेंड से, तो ये डिवाइड बाय 1000। अब आप वो जो हमारा था इनिशियली जो सर्वो हम कह रहे थे, उसमें हमने उस वक्त सिर्फ सर्वो पिन दी थी, और उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो यहाँ थी वो यूज़ की थी, और जो मैंने आपको बताया कि वो ये थी 2 और 1 उसके डिफ़ॉल्ट में, ये पैरामीटर्स हमने वहाँ नहीं दिए थे, तो उसने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिए और वो 2 और 1 थे।
अब आप उसमें करेक्शन कर रहे हो तो आपने ये पैरामीटर डाले जिसमें आपने कहा कि मिनिमम पल्स विड्थ जो है वो मिन पीडब्ल्यू के बराबर है जो आपने यहाँ डिफाइन किया, उसे चेंज किया, और मैक्सिमम पल्स विड्थ जो है वो आपने ये इस्तेमाल की है। तो अब आपने ये दो पैरामीटर ऐड किए जिसमें कुछ करेक्शन है कंपेयर टू द डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये हो गया। अब आप चाहें तो पहले लोकली खाली इस बात को चेक कर लें कि जो आपने करेक्शन की है क्या अब आपका सर्वो उस करेक्शन के मुताबिक नीडल को मूव कर रहा है। तो चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पर भी टेस्टिंग करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि सारे चेंजेस एक साथ मेन कोड में डाल के आप टेस्ट करें और आपको पता न चले कि किस जगह आपकी खराबी है। तो ये उसने एक अलग से बना के और फिर देखा कि भाई सर्वो डॉट मिन कहा, ये उसका मेथड है सर्वो के लिए अवेलेबल, सर्वो डॉट मिन कहा और 5 सेकंड के लिए स्लीप किया तो उसने मिनिमम पे सर्वो जाएगी और 5 सेकंड तक रुकी रहेगी। फिर सर्वो डॉट मैक्स कहा तो मैक्स पे चली जानी चाहिए और वहाँ 5 सेकंड रहे, और इसी तरह आपने एक 3-4 दफ़ा मिन और मैक्स उसे मूव करके टेस्ट कर लिया कि यस इट इज़ वर्किंग फाइन एज आई डिज़ायर्ड। अब आपने कहा ओके मैंने एक स्केलिंग भी कर ली है और मैंने इधर सर्वो की मूवमेंट को भी करेक्शन कर ली है। नाउ आई एम इन ए मोर रेडी स्टेट टू इंटीग्रेट। तो अब हम यहाँ पर वेदर डाटा को लेके और उसके साथ अपना वो जो प्रीवियस डैशबोर्ड था, ये हमारा था वेदर डैशबोर्ड, उस वक्त उसने खाली लोकल डाटा पे काम किया था। अब हम उसको ये नई चीज़ें जो हमारे पास आई और अब हम इसको वेदर डाटा पे काम करवाएंगे, तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया वेदर डाटा इनटू दिस, फ्रॉम वेदर डाटा हमने इंपोर्ट किया इनटू दिस। अब ये इस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ये क्लास बनाई वेदर डैशबोर्ड की और इसमें ये कोड लिखा कि वो पिन नंबर्स तो वही के अब 17 और 14 हम जैसे यूज़ कर रहे हैं उसको हमने एक नाम दे लिया, और ये हमने जो सर्वो करेक्शन का भी कोड सीखा था वो डाल दिया। फिर हमने इनिट में उसी तरह सर्वो पोजीशन और एलईडी स्टेटस बेस करके अब हमने जब यहाँ सर्वो कहा तो हमने ये जो सर्वो को इनिशियलाइज सर्वो के पैरामीटर्स के साथ कॉल किया उसका बिल्ट इन उस पर। तो पहले हमने खाली पिन नंबर दिया था, अब हमने यहाँ मिनिमम पल्स और ये दे दिए जो अब इस करेक्टेड वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। एलईडी के लिए हमने एलईडी खाली पिन करके बता दिया कि जी इस पिन नंबर पर है ये एलईडी। अब हमने जब कहा मूव सर्वो और गिव की सर्वो पोजीशन जो ऊपर थी पैरामीटर में सर्वो पोजीशन थी, तो वो सर्वो पोजीशन यूज करके आपने मूव सर्वो किया, ये मेथड है। इसी तरह पैरामीटर में एलईडी स्टेटस था वो आपने यूज किया। ये वो आपके अब मेथड्स हैं मूव सर्वो का, जिसमें सर्वो पोजीशन आप डिफॉल्ट 0 है वरना गिवन वैल्यू इस्तेमाल करेगा, और उसमें यही कन्वर्ट परसेंटेज टू इंटीजर और उसमें सर्वो पोजीशन का आपने पैरामीटर दिया हुआ है उसे कन्वर्ट करके वो सर्वो वैल्यू में करेगा जिसके मुताबिक सर्वो मूव करेगा। एक और आपने डाला मेथड टर्न ऑफ सर्वो, तो जब ये मेथड कॉल होगा 5 सेकंड्स तक वो डिले क्रिएट करेगा और फिर सर्वो को क्लोज कर देगा। ये क्लोज मेथड मौजूद है उसमें, उसको उसने यूज़ किया है। ओके, ये अब वो मामला इंटीग्रेशन का हो गया। इसमें ये एलईडी वाला भी इसी का है हिस्सा के, वो स्टेटस ये पुराना कोड जो हमारा था एलईडी का, अब हमने सब चीज़ें इंटीग्रेट की हैं तो ये पिछला कोड वो आ गया एलईडी के साथ जो काम करना है, ये वो कन्वर्शन वाला कोड है। एक और आपको वेरिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन के आपका जो ये बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है, हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। और पिक्चर भी आ रही है।
जी सर जी जी पिक्चर भी जी है। पीडीएफ नजर आ रहा है, आ पीडीएफ रहा में जो बस पिक्चर, हाँ जी नजर ठीक आ है। रही है। ओके ओके, तो इधर यहाँ पर उसने कुछ, हाँ ओके, अभी वो टाइम वो वाला है, रिजर्व टाइम है। ओके, अच्छा जी, ये हमारा बोर्ड है जिसमें ये ड्रेसेस के आपने 3 बनाए चॉइस, और इधर ये ग्लव्स ले जाने हैं तो ये पहनना है, तो ये सख्त गर्मी है तो इधर में भी सर्दी से और गर्मी की तरफ वो जा रहा है। ये वो एलईडी है कि अम्ब्रेला ले जानी है कि नहीं, तो ये वेरियस एप्लीकेशंस पे होते हैं। यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ दिखाई है, ये आपकी वो है मोटर, पीछे वो लगी हुई है और उसके नीडल इधर आ गई है, तो ये पिक्टोरियली ये दिखाएगा और ये चीज़ दिखाएगा। इस चीज़ के लिए हमारा ये मामला है। अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा था कि समटाइम्स आपका आप नीडल यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, क्लॉकवाइज इधर ले जाना चाहते हो, और समटाइम्स आप नीडल अगर यहाँ रखना चाहते हो इसी सर्वो को, और आप इसको इधर मूव करना चाहते हो, ये आपकी नीड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि यू गो टू अनदर बाय अनदर सर्वो और समथिंग। उसको आप सिंपली इस तरह के मेथड से इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं कि अगर आपकी, अब आप चाहेंगे क्या कि अगर ये सर्वो 0 पे इधर है और 100 पे इधर है, अगर आपने इधर से इधर पे रखना है तो आप 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी कोई वैल्यू है, तो वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा कि आप 100 के वक्त यहाँ 0 पे इधर होंगे और 0 के वक्त यहाँ 100 पे होंगे। तो ये उसकी एक ये मिसाल है कि अगर आप क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज इसकी मामलात को कर रहे हैं तो आप 100 माइनस परसेंटेज अमाउंट जो है आपने पहले 100 में से माइनस कर लें उसकी वैल्यू को, परसेंटेज की वैल्यू को, और फिर ये जो आप कन्वर्ट करते थे फिर कन्वर्शन अप्लाई करें। इस तरह के स्मॉल तरीकों से आप बहुत सारी वेरिएशंस इम्प्लीमेंटेशंस में कर सकते हैं, वो यहाँ पे शो की गई। अब अगर हम देखें तो आप कह रहे हैं नेम मेन, और उसमें आपने ये वेदर डेटा फॉर टोरंटो लिया फ्रॉम द वेबसाइट जो आपके इसमें आ गया वेदर डाटा में, और अब आपने वेदर डैशबोर्ड जो अभी आपका इधर है उसके उसको, ये उसके पैरामीटर्स हैं कि उसमें आपने गेट सर्वो वैल्यू ली, ये आपका इसका एक पैरामीटर, इसने गेट सर्वो वैल्यू ली, कॉमा इसने गेट एलईडी वैल्यू ली। इन वैल्यूज से वेदर डेटा से सर्वो की वैल्यू और एलईडी की वैल्यू पर ये वेदर डैशबोर्ड को इसने कॉल किया और ये ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसके बाद ये सेट हो गए उन जगहों पे, एलईडी भी एक्टिवेट हो गया और वो भी। तो फिर आपने कहा ओके वेदर डैशबोर्ड डॉट टर्न ऑफ सर्वो, सर्वो को फिर ऑफ कर दिया आपने। तो ये उसका यूजेज है आपके इसका। तो इसमें आपने ये इनिशियली के सर्वो को मिन पे ले जाना है तो एक छोटा सा बिगनिंग में मिन पे करना है, अदरवाइज यहाँ हमारा पूरी चीज़ें हमने कर ली। ये आपकी आउटपुट इस पे डिस्प्ले होगी, ये एलईडी है, ये या ब्लिंक करेगा डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ब्लिंक करेगा या ऑफ होगा या ऑन होगा। इसी तरह नीडल या इस जगह होगी या इस जगह होगी डिपेंडिंग ऑन दोज कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड विंड स्पीड से जो आपने सॉल्व किया था नीडल की पोजीशन उस पर चली जाएगी। ओके, any question about this? all right, अच्छा अब यस सर, एक क्वेश्चन था ये पीछे कोड में लेके जाएंगे, जी जी लास्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे ये पीछे जो, हाँ जी सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नेम इज इक्वल तो दूसरा लिख, वो इधर भी लिखा हुआ है नेम, यहाँ भी लिखा हुआ है जी ये जो लिखा हुआ है इफ नेम इज इफ नेम इज इक्वल टू मेन, हाँ। तो ये जब तक हम नेम का कोई डाटा नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेगा। ये मैंने सिर्फ पूछना था, मुझे सिर्फ इसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा नहीं, इट इज जस्ट टेलिंग, ये इफ कंडीशन वाले में, अच्छा सुनो, जहाँ आप ऊपर अपनी क्लास लिखते हैं उस हाँ क्लास जी के अलाइन जब ये लिखेंगे आप तो इट विल मीन कि आपके इस कोड का ये मेन है, ठीक है। आपने क्लास डिफाइन जहाँ से आपका वो शुरू हुआ उसके बीच में आप इंडेंट्स बहुत सारे आपके चलते गए, और डिपेंडिंग ऑन योर फॉर लूप्स और डिफाइन फंक्शन एंड थिंग्स, एंड में आपने कमिंग बैक टू योर
बेसिक ये इफ जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जब डाल के आप ये लिखेंगे इफ नेम इज इक्वल टू हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। और आई थिंक सर वैसे भी आपकी इंटरनेट हल्की लग रहा है। ओके चले। अच्छा ओके, अब आवाज और स्क्रीन दोनों है। हेलो। जी सर। अच्छा जी, अब आप सवाल हाँ मैंने जी बताया सर, आवाज दोनों, आवाज अगर आपके लेफ्ट मोस्ट उस पर जो आपने क्लास और ये कोड लिखा है, इसके अगर आप लेफ्ट मोस्ट पे ये वाला स्टेटमेंट दें तो इट विल मीन कि दिस इज योर मेन। जैसे हर सी कोड का एक मेन होता है, तो आपका कंपाइलर उस केस में लुक्स फॉर दैट मेन एंड रीचेस देयर, ठीक है। सो इस कोड का जो आपने लिखा, अगर आप इसको लेफ्ट मोस्ट में एंड में ये डालेंगे तो इट विल बी द मेन ऑफ दिस कोड, और ये कोड फिर रन होगा। ऊपर आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, मेथड्स डिफाइन किए, क्लास डिफाइन की, ब्रेड बोर्ड के अरेंजमेंट बताई। अब आप उसको रन करके टेस्ट करना चाहते हैं तो वो ये कोड है कि आपने पहले वेदर डाटा की क्लास से इस सिटी के लिए ये डाटा का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने अपना जो ये पैच बोर्ड पे वेदर डैशबोर्ड का बनाया था उसमें सर, ये बाकी चीजें सही है, वो ठीक है। बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि इफ कंडीशन नेम इज इक्वल टू मेन, ये नहीं समझ आ रहा। बाकी चलो हमें बस समझ आ ओके चुका है, लेकिन ये इफ कंडीशन ओके, चीज समझ चलो नहीं आ बस रहा। फिर ये बता दिया, ये समझ आ गया तो बस ओके। अगर नीचे का समझ आ गया तो ठीक है। और एनी अदर जी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम ओके हमारा टाइम तो है, हो गया। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू कि आप पहले उन चीज़ों को बेशक देख के आए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अभी हमने ये किया था कि एक वेबसाइट है और वहाँ से डाटा लेकर और हम अपने ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम जो आपका था लो लेवल जी पर, लोएस्ट लेयर पे, उसको हमने यूज़ किया था वेब के डाटा को। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक योर ओन वेब सर्वर बाय यूजिंग रास्पबेरी पाई, और फिर आप उसको एक्सेस करेंगे। जैसे कि आप दूसरे वेब सर्वर को आईपी दे के एक्सेस करते हैं और वहाँ से मेथड डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह आप अपना वेब सर्वर बनाएंगे और उधर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह जैसे अभी आपने दूसरे वेब सर्वर से किया है और उसको यूज़ किया है। तो अवर नेक्स्ट थिंग इज, पहले हमने लोएस्ट लेयर पे चीज़ों की इंटरफेसिंग को सीखा अपनी हार्डवेयर में, फिर हमने वेब से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का लिया। अब आप एक वेब बनाएंगे और उसमें वेब पेजेस और डाटा डालेंगे और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, ओके सर। एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट और एनी क्वेश्चन? क्योंकि अब आप उसका कंप्लीट कोड रेडी करके और राइट करके लाएंगे, और फिर जो हमारी नेक्स्ट लैब क्लास होगी उसमें आप उसको रन करके टेस्ट करेंगे और फिर आप उसको जी डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक, ओके, जी सर। ऑलराइट, चलें। ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज, नो क्वेश्चन। सी यू इन द थैंक नेक्स्ट। यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।